Good evening. Today is 11th January 2017. Now we discuss NCERT Economics. आज हमने NCERT का इकोनॉमिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. It is presented by me. My name is Surya Kumar Dakwa. Let's start our discussion. पहले हमने NCERT के जो टॉपिक्स है देखिए. पहले चैप्टर जो है NCERT का जो इंट्रोडक्शन है, उसके बाद डिविजन ऑफ इकोनॉमिक्स फोकस, GDP, GNP, HDI, HPI, ह्यूमन प्रॉपर्टी इंडेक्स, GPI, GNH, okay, and sector-wise Indian economy, and the sectors of the economic activities, comparing the three sectors: primary, secondary, and tertiary sectors in India. Division of sectors in the sectors as organized and unorganized sectors in times of ownership and economics planning, planned economy, history of planning, Indian economic interaction with the world, developmental path, a snapshot view, demographic indicators, and gross domestic product and sectors in the indicators of human development. Okay, development strategies and appraisal conclusion, and उसके बाद liberalization, privatization, globalization. Who are the poor? How are poor people in India identified? Who causes poverty? Poverty alleviation programs, a critical assessment, human capital aid and human development, and human capital program in India, great prospects. Okay, उसके बाद देखिए एजुकेशन सेक्टर्स इन इंडिया, फ्यूचर prospects, introduction, what is the rural development, agricultural market system, sustainable development, organic farming, conclusion, growth and changing sector of employment, informalization of Indian workforce, unemployment, government and employment generation, conclusion, what is infrastructures, relevance of infrastructure, the state of India infrastructure in India, energy sustainable development, strategies for sustainable development, stock markets in India, stock markets, okay, and specifically the Indian, especially the Indian context, tax collection, multiple choice questions. So now we discuss all the chapters very thoroughly and very fluently. Okay, let's start. Introduction. India economics as a word comes from the Greek oikos, means family. Okay, economics जो word जो है comes from कहाँ से आया है? Greek oikos, and उसका means क्या है? The family and or household or estate, and nomos economics. Okay, nomos, ecos and nomos. So ecos means family and nomos means custom or law. Okay, etc. So economics means the law of the family or law of customs, law of custom, law of household. Okay, so thus household management or management of scarce resource in the essential meaning of economics. Okay, so household management, okay, and scarce resource management is essential meaning of economics. Economics encompasses production, distribution, trade, and consumption of goods and services. Okay, so economics क्या है? Economics encompasses production, distribution, trade, and consumption of goods and services. Economic logic is applied to any problem that involves choice under scarcity. Economic logic is applied to any problem that involves choice under scarcity. इकोनॉमिक लॉजिक है इज अप्लाइड, कहाँ पर अप्लाइड है? एनी प्रॉब्लम, कहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम है जो जहाँ पर इन्वॉल्व है, तो इन्वॉल्व चॉइस अंडर स्कार्सिटी, जहाँ पर स्कार्सिटी आ गया है. इनिशियली इकोनॉमिक्स फोकस्ड ऑन वेल्थ. ओके, यहाँ पर फोकस्ड है ना वेल्थ पे, एंड लेटर वेलफेयर में, लेटर वेलफेयर, still later. In recent years, it has given sufficient attention to the study of trade-offs, giving up one to gain another. Okay. So यहाँ पर देखिए क्या बात कर रहा है ना, इकोनॉमिक्स जो लॉजिक अप्लाइड एनी प्रॉब्लम को इन्वॉल्व है, कोई भी प्रॉब्लम इसके साथ जो इन्वॉल्व है, एंड इनिशियली इकोनॉमिक्स फोकस्ड वेल्थ में एंड लेटर वेलफेयर में. पहले वेल्थ में एंड उसके बाद वेलफेयर स्कीम में, स्टिल लेटर. इन रिसेंट ईयर देखिए, रिसेंट ईयर में क्या है? it has give sufficient attention, sufficient attention दिया है to study of trade-offs, giving up
one to gain another. Okay, the focus on trade-offs arises, the focus क्या है ना, focus trade-off का, trade-off arises from the traditional assumption. Okay, the focus on trade-off arises from the traditional assumption that resources are scarce and that it is necessary to choose between competing alternatives. Okay, the focus of trade-offs जो है अराइज कर रहा है, the focus trade off जो अराइज कर रहा है ट्रेडिशनली, इसके एजम्पन दिया हुआ है, एजम्पन दैट द रिसोर्स जो है, रिसोर्स आर स्कार्स, जो है जो स्कार्स जो अब नहीं मिल रहा है, एंड दैट इट इज़ नेसेसरी टू चूज बिटवीन कंपटीशन, जो हमने चूज करते हैं कंपटीशन अल्टरनेटिव्स में. तो चूजिंग वन बेनिफिट्स, हम चूज करते हैं वन बेनिफिट्स इम्प्लाइज फॉरगोइंग अनदर अल्टरनेटिव. ओके, हम चूज करते हैं एंड जाते हैं फॉरगोइंग अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज अनदर अल्टरनेटिव. ओके, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग एन अपॉर्चुनिटी. ओके, द अनदर अपॉर्चुनिटी क्या है, फॉरगोइंग अनदर, जो अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी, जो कॉस्ट ऑफ फॉरगोइंग एन अपॉर्चुनिटी. एडम स्मिथ जनरली रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स. ओके, एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स उसको हम कहते हैं. ओके, okay, author of an inquiry, okay, into the nature of causes of the wealth of nations. Okay, उन्होंने इंक्वायरी किया है जो एडम स्मिथ, the nature of the causes of the wealth of nations. Okay, generally known as the wealth of nations defines. Okay, so nature and causes of wealth क्या है ना, nations जो है known as the wealth of nations. Okay, डिफेंस इकोनॉमिक्स, जो वेल्थ ऑफ नेशन जो होगा वो बहुत अच्छा होगा. तो डिफेंस, उन्होंने क्या बात करना है इकोनॉमिक्स के बारे में, उन्होंने क्या डिफाइन किया, द साइंस ऑफ वेल्थ, जो साइंस है वेल्थ, साइंस ऑफ वेल्थ जो है उसके बारे में उन्होंने बात किया है. ओके, द साइंस ऑफ वेल्थ, देखिए, द वेल्थ ऑफ नेशंस इज डिपेंड द साइंस ऑफ वेल्थ. ओके, स्मिथ ऑफर्ड अनदर डेफिनेशन, द साइंस रिलेटिंग टू द लॉज ऑफ प्रोडक्शन. जो साइंस रिलेटेड इसके साथ है लॉज ऑफ प्रोडक्शन के लॉज के ऊपर. ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज के ऊपर. ओके, साइंस रिलेटिंग टू द लॉज ऑफ प्रोडक्शन, साइंस रिलेट किसके साथ, रिलेटिंग टू द लॉस ऑफ प्रोडक्शन के लॉ, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज के ऊपर. ओके, डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एम्फसाइज, डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ जो है एम्फसाइज प्रोडक्शन एंड कंजप्शन एंड डू नॉट डील नहीं करते, डू नॉट डील विद द इकोनॉमिक अल्टरनेटिव एक्टिविटीज एंड डू नॉट डील विद इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड ऑफ दोज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व. ओके, in these two processes, for example children and old people. देखिए, द साइंस रिलेटिंग टू द लॉज ऑफ प्रोडक्शन, साइंस किसका जो प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज. डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ द वेल्थ एम्फसाइज क्या है ना, किसके प्रोडक्ट क्या बात करता है ना, डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ एम्फसाइज प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन. तो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के बारे में बात कर रहे हैं. एंड डू नॉट डील विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी, एंड कभी भी वो डील नहीं करती इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में. ओके, तो वो बात करते लॉस जो है प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज के साथ है, एवं उसके साथ तो डिफाइन किया है क्या है ना वेल्थ जो एम्फसाइज करते हैं प्रोडक्शन को एंड कंजम्पशन को, बट डू नॉट डील विद द इकोनॉमिक अल्टरनेटिव एक्टिविटीज को. ओके, of these not significantly involved in these two processes, for example children and old people. Okay, the belief is that non-productive activity is a cost of on society. तो बिलीफ क्या है, बिलीफ इज दैट नॉन प्रोडक्टिविटी जो एक्टिविटी है, जो प्रोडक्टिविटी नहीं है, नॉन प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी है, इज ए कॉस्ट ऑफ ऑन सोसाइटी, जो कॉस्ट ऑन सोसाइटी. it means that man was relegated on the secondary position, to the secondary position. तो यहाँ पर क्या बात कर रहा था, बिलीव, देखिए, डू नॉट डील विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में वो डील नहीं करते. ऑफ दोज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन दिस टू प्रोसेसेस, वो सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व नहीं है. टू ओके, फॉर एग्जांपल देखा जाए तो चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल. ओके, जो सिग्निफिकेंट नहीं है. द बिलीव इज दैट नॉन प्रोडक्टिव जो एक्टिविटी है, ओके, जो प्रोडक्टिव नहीं होता है, इज ए कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, उसको कॉस्ट देना पड़ता है सोसाइटी को. तो इट मीन दैट मैन वाज रिलीगेटेड टू द सेकेंडरी पोजीशन, मैन जो है सेकेंडरी पोजीशन में. एंड वेल्थ वाज प्लेस्ड अबव लाइफ, वेल्थ जो है वो प्लेस्ड करते हैं लाइफ में. Thus across the
shift in the focus to welfare economics. Okay, across the shift of in the focus to welfare economics. Okay, दस हम अगर देखा जाए क्या ना एरोज कर रहा है शिफ्ट हो रहा है वेलफेयर इकोनॉमी के बारे में, तो स्टडी ऑफ मैन के बारे में हमें स्टडी करना पड़ेगा, ऑफ एंड ऑफ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में. ओके, हमें मैन के बारे में एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में हमें स्टडी करना चाहिए. नॉट ऑफ मनी अलोन, मनी के बारे में हमें देखना नहीं चाहिए, हमें मैन के बारे में एंड ह्यूमन वेलफेयर के बारे में हमें देखना चाहिए. ओके, यही होगा वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करना. ओके, तो वेल इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व सोशल एक्शन, इकोनॉमिक्स जो इन्वॉल्व है इसके साथ सोशल एक्शन कनेक्टेड विद द इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व सोशल एक्शन कनेक्टेड विद द अटेनमेंट ऑफ ह्यूमन वेलबींग्स. ओके, जो अटेनमेंट ऑफ किसके साथ ना ह्यूमन वेलबींग के साथ. ओके, okay, economics involves social action in connected with the attainment of human well-being. Types of economics. Economics is usually divided into two main branches. Okay, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स which examines, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बात कर रहे हैं ना, माइक्रो which examines the economics behavior. Okay, behavior of individual across actors such as consumers, business, household, etc. Okay, माइक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करते क्या है ना, माइक्रो एग्जामिन द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल का बिहेवियर देखते, इकोनॉमिक बिहेवियर देखते हैं. ओके, इकोनॉमिक बिहेवियर देखते हैं ऑफ इंडिविजुअल के एक्रोस. ओके, एक्टर्स सच एज कंज्यूमर्स, बिजनेस, ओके, हाउस होल्ड एक्सेट्रा को टू अंडरस्टैंड हाउ डिसीजंस आर मेड इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी. तो हमने क्या अंडरस्टैंड करते हैं ना, कैसे डिसीजन जो है मेड होते हैं इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी, जो जहाँ स्कार्सिटी रहते हैं, एंड व्हाट इफेक्ट्स में है, कहाँ क्या वो इफेक्ट फैलते हैं. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स which स्टडीज द मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है, ये क्या बात कर रहे हैं ना, जो इंडिविजुअल एक्टर्स है इकोनॉमिक बिहेवियर जो करते हैं इंडिविजुअल एज कंज्यूमर्स, बिजनेस, हाउस होल्ड, तो वो अंडरस्टैंड क्या करते हैं ना, वो हाउ डिसीजन, देखिए टू अंडरस्टैंड हाउ डिसीजन आर मेड, कैसे डिसीजन मेड होते हैं इन द फेस ऑफ स्कार्सिटी में. ठीक है, एंड व्हाट इफेक्ट्स फैलते हैं वो. ओके, तो यही बात करते हैं. उसके साथ क्या ना मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमने स्टडी करते हैं, तो हुई स्टडीज द इकोनॉमिक्स एज ए होल एंड इट्स फीचर्स लाइक नेशनल इनकम. इसका मेन फीचर्स क्या है, नेशनल इनकम. देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करते हैं ना, इकोनॉमिक्स एज ए होल एंड इट्स फीचर्स लाइक नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन. ओके, तो इसके बारे में वो बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, तो नेशनल इनकम के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एंड इन्फ्लेशन. द टू आर लिंक्ड क्लोजली एज द बिहेवियर ऑफ ए फार्म और कंज्यूमर और हाउस होल्ड. देखिए जो टू है वो क्लोजली लिंक्ड किसके साथ है, लिंक्ड क्लोजली विद एज द बिहेवियर ऑफ ए फार्म के बिहेवियर के साथ और कंज्यूमर के साथ बिहेवियर के साथ, एंड हाउस होल्ड डिपेंड्स, हाउस होल्ड उसके ऊपर डिपेंड्स ऑन अपन किसके साथ, डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर. ओके, जो डिपेंड करते हैं स्टेट जो नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर डिपेंड करते हैं. ओके, जो इसका नेशनल एंड ग्लोबल इकोनॉमी का कैसे वो हाल है, तो उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कोई भी जो इन्फ्लेशन होते हैं, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी. ओके, एंड उसके साथ बात देखिए मेसो इकोनॉमिक्स. मेसो इकोनॉमिक्स क्या है, मेसो इकोनॉमिक्स स्टडीज करते हैं हम जो स्टडीज द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन. ओके, जो इस दोनों का मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो मीडियम जो पर्सन है उसका हम मेसो इकोनॉमिक्स कहते हैं. ओके, जो इंटरमीडिएट लेवल. ओके, तो और इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इन बिटवीन द मैक्रो एंड माइक्रो. ओके, इकोनॉमिक्स लाइक इंस्ट्रूमेंटल अरेंजमेंट्स. ओके, एक्सेट्रा. डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स फोकस, डिवीजन जो इकोनॉमिक हमने जो डिवीजन करते हैं इकोनॉमिक्स को, फोकस ऑन डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक्स, फोकस ऑन डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फोकस मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन आउटपुट इन इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस. ओके, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फोकस करते हैं, डिवीजन ऑफ इकोनॉमिक फोकस माइक्रो इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन आउटपुट इन इंडिविजुअल इंडस्ट्रियल एंड बिजनेस and consumer and behavior, how much steel, how much office space, how much cars, consumer behavior. माइक्रो इकोनॉमिक्स देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है,
देखिए प्रोडक्शन एंड आउटपुट इंडिविजुअल्स, ओके, इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में देखते हैं इसका। एंड हाउ मच स्टील कैब से कितना है स्टील, हाउ मच ऑफिस स्पेस, हाउ मेनी कार्स, कितना कार है, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, ओके। उसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक, देखिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये क्या कहते हैं ना, नेशनल प्रोडक्शन आउटपुट, ओके। तो यहाँ पर देखता है क्या नाम, प्रोडक्शन आउटपुट, यहाँ पर नेशनल प्रोडक्शन आउटपुट, ओके। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में हम देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट, प्रॉपर्टी, इन्फ्लेशन, बीपीओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, देयर आर ब्रॉडली, ओके। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रॉपर्टी, इन्फ्लेशन, ओके, एम्प्लॉयमेंट, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, नेशनल प्रोडक्टिव सिस्टम आउटपुट, ओके। तो बीपीओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट, देयर आर ब्रॉडली द फॉलोइंग अप्रोचेस इन द मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स। देखिए देयर आर ब्रॉडली द फॉलोइंग अप्रोचेस इन द मेन स्ट्रीम इकोनॉमी। देखिए वहाँ पर ब्रॉडली हम क्या देखते हैं, अप्रोच करते हैं कि मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स के बारे में देखते हैं। द बेसिस ऑफ द स्ट्रीम, ऑल द स्ट्रीम्स, मेन बेसिस क्या है, बेसिस ऑफ ऑल द स्ट्रीम्स इज सेम। उसका जो बेस है वो ऑल स्ट्रीम का वो सेम है। रिसोर्स एंड स्कार्स वाइल, रिसोर्स है स्कार्स वाइल वांट टू अनलिमिटेड ओपन मेंशनड, ओके। देखिए जो ऑल द स्ट्रीम्स इन द सेम रिसोर्स जो है आर स्कार्स वाइल वांट्स टू अनलिमिटेड ओपन मेंशनड एज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ओके। देखिए देयर ब्रॉडली हमने क्या फॉलोइंग अप्रोचेस हम देखते हैं मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स के बारे में। द बेसिस ऑफ द स्ट्रीम्स आर द इज द सेम रिसोर्स आर स्कार्स व्हाइल वांट्स आर अनलिमिटेड ऑफन मेंशनड एज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। Keynesian theory of macroeconomics. Keynesian theory of macroeconomics. Keynesian macroeconomics is based on the theories of 20th century British economics. देखिए केन्सियन जो थ्योरी है और मैक्रोइकोनॉमिक्स का, ओके। देखिए सॉरी यहाँ पर बात देखिए बीपीओ क्या है, देखिए ब्रॉडली कोई अप्रोच है मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक्स से, मेन स्ट्रीम का इसका बेसिस क्या है ना। देखिए रिसोर्स जो है स्कार्स है एंड यहाँ पर जो उसका वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वाइल वांट्स टू अनलिमिटेड ओपन मेंशन एज पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकता है, ओके। तो केन्सियन थ्योरी ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स के बारे में हम देखेंगे। केन्सियन मैक्रोइकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन द थ्योरीज ऑफ 20th century ब्रिटिश इकोनॉमिक्स, जॉन मेनार्ड केन्स, ओके, केन्स, ओके। देखिए केन्सियन जो मैक्रोइकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन किसका थ्योरी के ऊपर, 20th सेंचुरी का जो ब्रिटिश इकोनॉमिक्स है जॉन मेनार्ड केन्स उसका ऊपर, ओके। इट सेज दैट द स्टेट कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टेट जो है वो स्टिमुलेट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को, एंड रिस्टोर स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी, ओके। रिस्टोर करते हैं स्टेबिलिटी, इकोनॉमी का स्टोर करते हैं, स्टेबिलिटी कराते हैं, ओके, थ्रू एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए, ओके, एग्जांपल थ्रू अगर देखा जाए तो क्या ना, देखिए मैसिव प्रोग्राम ऑफ और स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके। देखिए मैसिव प्रोग्राम जो है हम स्पेंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो व्हेन द डिमांड इज लो एंड ग्रोथ इज नेगेटिव, जब ग्रोथ नेगेटिव होता है तो मैसिव प्रोग्राम और ऑफ स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर का हम स्पेंड करते हैं व्हेन द डिमांड जो है लो है, उसका डिमांड का जो लो है एंड ग्रोथ जो है नेगेटिव है, ओके। इन द रिसेशनरी फेज that the economics of the western world in particular and rest of the world in general, okay। देखिए इन द नेसेसरी फेज में हम क्या देखते हैं ना, द इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में, ओके। देखिए इकोनॉमिक्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड में जो देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, इन पर्टिकुलर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज जनरल, इन जनरल देखिए वेंट थ्रू सम आर स्टिल ऑन अंडरगोइंग एंड रिसेशन, ओके। जो अंडरगोइंग जो स्टील के यहाँ पर अंडरगोइंग एंड रिसेशन में जा रहे हैं, ओके। ड्यू टू 2008 फिजिकल क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में द रिलीवेंस ऑफ केन्स इज ग्रोइंग, ओके। जो प्रासंगिक जो रिलीवेंस है तो वो केन्स का तो वो ग्रो होते जा रहा था, ओके, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में। देखिए intervention of by state is only when the economic cycle turns down and growth slows down or in negative, okay, or is negative।
देखिए द इंटरवेंशन ऑफ बाई स्टेट इज ओनली व्हेन द इकोनॉमिक साइकिल टर्न्स कर रहा था एंड ग्रोथ जो है स्लो डाउन कर रहा था, इज नेगेटिव हो रहा है। ओके तो उस टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव हो रहा था। ओके इन नॉर्मल टाइम्स में देखा जाए तो इट इज़ द मार्केट, ये मार्केट है दैट ड्राइव्स करते थे ग्रोथ थ्रू द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। जो मार्केट ग्रोथ होते थे तो जो इट इज़ द मार्केट दैट ड्राइव्स ग्रोथ, जो ड्राइव करते जो ड्राइव होते हैं ग्रोथ थ्रू फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। ओके देखिए इंडियन गवर्नमेंट स्टेप्ड अप एक्सपेंडिचर के ऊपर उन्होंने स्टेप लिया है विथ 3 फिजिकल स्टिमुली सीन्स, जो 3 फिजिकल स्टिमुली के बारे में सीन्स दिसंबर से, देखिए दिसंबर 2008 में इट से टू रिवाइव ग्रोथ चलने लगा विद ग्रोथ स्टार्टिंग द ग्रेजुअल एंड कैलिब्रेटेड एक्सिट from the stimulus was begun in the 2010 and 11 union budget। ओके देखिए विद ग्रोथ जो है स्टार्टिंग कर रहा था, द ग्रेजुअल एंड से कैलिब्रेटेड एग्जिट हो रहा था। ओके हो रहा था फ्रॉम द स्टिमुलस वाज बिगन इन द 2010 एंड 11 यूनियन बजट में वो स्टिमुलेट कर रहा था। ओके ओके उसके बाद देखिए जो द थ्योरीज ऑफ केंसियन इकोनॉमिक्स were first presented in the general theory of employment and interest and money 1936 में वो पब्लिश हुआ था। ओके 1936 में ओके एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के ऊपर। न्यू लिबरलिज्म इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म। न्यू लिबरलिज्म रेफर्स क्या रेफर्स करते हैं, रेफर्स टू एडवोकेसी ऑफ पॉलिसीज। ओके जो एडवोकेसी ऑफ पॉलिसीज के बारे में वो एडवोकेट करते हैं। न्यू लिबरलिज्म रेफर्स टू advocacy of policies such as individual liberty, free markets, and free trade. Neoliberalism proposes that human well-being can best be advanced by liberating individual entrepreneurial freedoms and skills within an institutional framework characterized by strong private property rights, free markets and free trade। ओके देखिए न्यू लिबरलिज्म जो है वो रेफर्स करते हैं ना एडवोकेसी ऑफ पॉलिसीज़ के बारे में वो देखते हैं, साथ ही देखिए इंडिविजुअल लिबर्टी के बारे में, फ्री मार्केट्स के बारे में एंड फ्री ट्रेड। न्यू लिबरलिज्म जो है प्रपोज करते हैं दैट द ह्यूमन वेलबींग्स कैन बेस्ट बी एडवांस्ड बाय लिबरेटिंग इंडिविजुअल। ओके एंटरप्रेन्योरियल फ्रीडम्स जो है एंड स्किल्स है विद इन एन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में। ओके कैरेक्टराइज्ड बाय क्या इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट्स के बारे में, फ्री मार्केट्स एंड फ्री ट्रेड के बारे में वहाँ पर रहते हैं। ओके तो यहाँ पर फ्री मार्केट फ्री ट्रेड एंड प्राइवेट पॉलिसी राइट्स जो है यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है। Okay. The socialist theory of economics in distinction to the above, there are school of socialist economics based on public state ownership of means of production to achieve greater equality and give the workers greater control of the means of production। देखिए सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में हमें देखा जाए तो इन डिस्टिंक्शन टू द अबव देयर इज द स्कूल ऑफ सोशोलॉजिस्ट, जो सोशोलॉजिस्ट स्कूल है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन पब्लिक स्टेट ओनरशिप, बेस्ड ऑन किसके ऊपर बेस्ड है ना पब्लिक सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू अचीव ग्रेटर इक्वलिटी, अचीव करते हैं ग्रेटर इक्वलिटी एंड गिव द वर्कर्स ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन। सो इसके बाद देखिए इट एस्टेब्लिश द फुल्ली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी which is also called command economy। देखिए कमांड इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्कूल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स क्या किसके ऊपर बेस्ड है, ऑन पब्लिक से ओनरशिप के ऊपर। मीन्स इसका मीन्स क्या है, द प्रोडक्शन जो है अचीव ग्रेटर इक्वलिटी, उसके ऊपर ग्रेटर अचीव करते हैं ग्रेटर इक्वलिटी के साथ, एंड जो देते हैं वर्कर्स को ग्रेटर कंट्रोल करते हैं ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर में। ओके एंड इस्टेब्लिश क्या करते हैं ना, इस्टेब्लिश फुल्ली सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कराते हैं एंड इकोनॉमी इज एट द कमांड ऑफ द सो प्लान्ड इकोनॉमी, उसको हमने क्या कहते हैं ना कमांड इकोनॉमी। ओके देखिए इकोनॉमी इज एट द कमांड ऑफ द स्टेट, प्राइवेट ओनरशिप इज ऑफ एसेट इज नॉट अलाउड। ओके
उसके बाद क्या है देखिए, इसके बाद भी बहुत ज़्यादा है, इसके बाद ये भी है। तो ये स्लाइड हमने जस्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमने वीडियो स्टॉप कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, अर्स्ट वाइल यूएसएसआर क्यूबा एक्सेट्रा। ओके, तो यूएसएसआर क्यूबा देखिए, कॉमन इकोनॉमी के बारे में हमने बात किया था। तो इकोनॉमी को देखिए, कॉल्ड कॉमन इकोनॉमी इज एट द कॉमन एंड ऑफ द स्टेट एंड प्राइवेट ओनरशिप एसेट ऑफ एसेट इज नॉट अलाउड। कहाँ पर अलाउड नहीं था देखिए, यूएसएसआर एंड क्यूबा। ओके, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स देखिए, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। देखिए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज क्या है ना, ये ब्रांच ऑफ इकोनॉमी है। ओके, विद डील्स क्या करते हैं ना, डील्स विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, वो डील करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर। ओके, देखिए डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर, द डेवलपमेंटल प्रोसेस। देखिए डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स करते हैं ना इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स के ऊपर एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस के ऊपर, मेनली इन लो इनकम कंट्रीज में वो होते हैं। ओके, डेवलप्ड कंट्रीज इज ए ब्रांच, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ क्या इकोनॉमिक्स है, डील्स करते हैं इकोनॉमिक एस्पेक्ट को, डेवलपमेंटल प्रोसेस को इन लो इनकम जो कंट्री है वहाँ पर। इट फोकस करते हैं, इट्स फोकस इज नॉट ओनली प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। आप कहाँ पर फोकस करते हैं ना, ये जस्ट प्रमोटिंग, ये जस्ट ओनली प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ को जस्ट वो फोकस नहीं करते, बल्कि एंड स्ट्रक्चरल चेंज को भी वो देखते हैं, बट ऑल्सो इम्प्रूविंग द वेलबींग ऑफ द पॉपुलेशन। वेलबींग के बारे में वो देखते हैं। ओके, तो एज ए होल थ्रू हेल्थ एंड एजुकेशन एंड वर्क प्लेस कंडीशन, तो वेदर थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट चैनल्स द मोस्ट प्रोमिनेंट कंटेम्पोररी डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिस्ट आर नोबेल लॉरेट्स अमर्त्य सेन एंड जोसेफ स्टिग्लिट्ज। ओके, देखिए पॉपुलेशन जो है, इट फोकस करते हैं ना प्रमोटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में देखते हैं, इंप्रूविंग करते हैं ना वेलबींग के पॉपुलेशन को एज ए होल थ्रू द हेल्थ एंड एजुकेशन एंड वर्क प्लेस कंडीशन, वेदर थ्रू पब्लिक एंड प्राइवेट चैनल में। ओके, द मोस्ट जो है प्रोमिनेंट कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स आर नोबेल अमर्त्य सेन ने, एंड जो उन्होंने बहुत अच्छी बहुत नोबेल लॉरेट है। ओके, नोबेल लॉरेट्स है, तो अमर्त्य सेन एंड जो जोसेफ स्टिग्लिट्ज उन्होंने भी बात किया है। ओके, तो उसके बाद देखेंगे हमने स्ट्रक्चरल चेंज के बारे में। स्ट्रक्चरल चेंज इकोनॉमी रेफर्स क्या कहते हैं, टू ए लॉन्ग टर्म वाइड स्प्रेड चेंजेस ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ द इंडियन इकोनॉमी क्या रेफर करते हैं ना, द टू ए लॉन्ग टर्म वाइड स्प्रेड चेंज ऑफ फंडामेंटल स्ट्रक्चर अदर देन माइक्रो स्केल और शॉर्ट टर्म चेंज। ओके, देखिए स्ट्रक्चरल चेंज ऑफ द इकोनॉमी, अपन इकोनॉमी रिवर्स करते हैं लॉन्ग टर्म वाइड स्प्रेड चेंज ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर rather than माइक्रो स्केल और लॉन्ग टर्म चेंज। ओके, तो वो क्या बात करते हैं ना, और लॉन्ग टर्म वाइड स्प्रेड को चेंज की बात करते हैं, लेकिन वो फिर फंडामेंटल स्ट्रक्चर के बारे में, रेदर देन माइक्रो स्केल के बारे में वो बात नहीं करते, और शॉर्ट टर्म के बारे में बात नहीं करते। ओके, वो लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल देखिए, ए सब्सिस्टेंस इकोनॉमी जो है, एक सब्सिस्टेंस जो इकोनॉमी है, जो बहुत अच्छी से हो रहा है, तो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी इज ट्रांसफॉर्म इनटू मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी। वो जो चलते हैं उसको हमने मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी के बारे में ले गया है। तो और ए रेगुलेट मिक्स्ड इकोनॉमी और इज लिबरलाइज, जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इज लिबरलाइज हो रहा है, एंड इंसुलेट and protectionist economy। Okay, an insulated and a protectionist economy हुआ है, because open and globalized हुआ है। देखिए ये करंट स्ट्रक्चरल चेंज इन द वर्ल्ड इकोनॉमी इज ग्लोबलाइजेशन। देखिए ये करंट स्ट्रक्चरल चेंज क्या है ना, ग्लोबलाइजेशन। ग्रीन इकोनॉमिक्स फोकस क्या करते हैं ऑन द सपोर्ट और द हार्मोनियस इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर and attempts to reconcile the two on supports of the humanities के बारे में इंटरेक्शन इसके साथ, ह्यूमन्स एंड नेचर के साथ इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी। ओके, reconcile to in the two economic growth and its measurement method। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ चेंज इंक्रीज और डिक्रीजेस। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इज अ चेंज इंक्रीज होते हैं और डिक्रीज होते हैं। ओके,
इन द वैल्यू ऑफ गुड्स, इन द देखिए वैल्यू गुड्स का वैल्यू के ऊपर एंड सर्विस के ऊपर, प्रोड्यूस्ड बाई एन इकोनॉमी, जो प्रोड्यूस होता है इकोनॉमी के बाद, इफ इट इज़ पॉजिटिव, जब अगर पॉजिटिव हो रहा है तो इट मीन्स एन इंक्रीज इन द आउटपुट, तो आउटपुट बढ़ेगा, पॉजिटिव हो रहा है, एंड द इनकम इज ऑफ द कंट्री, वो बढ़ेगा। ओके, तो इट इज़ ग्रेट जनरली सोन द इन द इंक्रीज ऑफ इन परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ द रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं हम, ठीक है। तो इंक्रीज होता है परसेंटेज टर्म्स ऑफ रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो इंक्रीज होता है तो उसके ऊपर जीडीपी एडजस्ट होते हैं टू इन्फ्लेशन और टू रियल जीडीपी। ओके, रियल जीडीपी। ओके, मेजरिंग ग्रोथ, हमने कैसे मेजर करेंगे ग्रोथ को, कोई भी ग्रोथ को। ओके, देखिए हमने मेजर ऑफ नेशनल इनकम जो है और एंड आउटपुट आर यूज्ड इन इकोनॉमिक्स टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए हमने क्या, देखिए मेजर में मेजर्स कहते हैं नेशनल इनकम को एंड आउटपुट, और यूज टू इकोनॉमिक इन इकोनॉमिक्स में हम इसको यूज करते हैं। ओके, टू एस्टिमेट द वैल्यू एंड गुड्स एंड सर्विस को इन एन इकोनॉमी में दे यूज्ड ए सिस्टम ऑफ नेशनल एंड अकाउंट ऑफ नेशनल अकाउंटिंग। ओके, देखिए द यूज ऑफ सिस्टम, यूज ए सिस्टम, दे यूज, हमने देखिए ये पर मेजर करते हैं नेशनल इनकम को, नेशनल इनकम एंड आउटपुट को एंड यूज होते हैं इकोनॉमिक्स में, टू एस्टिमेट करते हैं द वैल्यू को एंड गुड्स एंड सर्विस को इकोनॉमी में, द यूज ऑफ ए सिस्टम, नेशनल अकाउंट्स और नेशनल अकाउंटिंग करते हैं। सम ऑफ द, देखिए सम ऑफ द कॉमन मेजर्स आर ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, सो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ओके, इसके बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो थैंक यू, आई थिंक इट विल बी हेल्प टू यू। ओके, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। ओके, नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में हम देखेंगे। ओके, तो थैंक यू।